تو ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم۔ دانش تیمور اور فیروز خان کا آپس میں ٹکر کا مقابلہ، ڈرامہ سیریز اظہار ایپیسوڈ 1 آج ہم بات کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کیا ہبہ بخاری کو فیروز خان یا دانش تیمور حاصل کر لیتا ہے۔ رات کے اس پہر اس کی اچانک آنکھ کھلی، وہ بڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے اندھیرے میں ہاتھ ہلائے اور سائیڈ پر ٹیبل پہ لیمپ رکھا ہوا تھا کھولا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یقیناً اس نے پھر کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کر اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ بیڈ سے اتر کر اس نے چپل پہنی اور واش روم کی طرف چل دیا۔ اس نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ خواب نہیں تھا جو اس نے دیکھا، وہ دراصل ایک بھیانک حقیقت تھی جو چند سال پہلے اس کی زندگی میں رونما ہوئی۔ اپنے ذہن سے سارے خیالات نکال کر اس نے وضو کیا اور باہر نکل آئی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی، سیڑھیوں سے نیچے اتری اور کونے والے کمرے میں جا کر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے بہت دھیمی اور بوڑھی دادی کی آواز آئی۔ السلام علیکم دادا، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسی ہو؟ دادا نے پوچھا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جواب بھی آیا اور سوال بھی پوچھا گیا۔ اللہ کا شکر ہے، جواب آیا۔ دادا کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے پاس آئی اور اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ دادا اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اداس ہے۔ دادا نے اس سے پوچھا، رواحہ کیوں اداس ہو میری جان؟ اس نے اپنا سر اٹھا کر دادا کو دکھایا اور فوراً بولی، نہیں دادا، یہ آپ کا وہم ہے۔ دادا نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور ہنس کر کہا، میرے بچے، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، تمہارے چہرے کے ہر تاثرات کو پہچانتا ہوں، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے چہرے کی یہ اداسی نہیں پہچان سکتا میں؟ اگر تم یہ سوچتی ہو تو بالکل غلط سوچتی ہو۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ تم مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ رواحہ نے ان کو بغور دیکھا اور سوچا کہ دادا کو کیسے اس کے دل کا حال پتہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو اس کا کیا ہوتا؟ رواحہ کی آنکھوں میں نمی آنے لگی، جو دادا نے فوراً دیکھ لیا اور اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوں کو اپنی انگلی سے جذب کر لیا۔ دادا نے بڑی شفقت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، میری جان، کیا مجھے نہیں بتاؤ گی کہ کیوں روتی ہو؟ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرو میری جان۔ دادا، میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ رواحہ نے شکوہ کیا۔ رواحہ، آپ کو کون سی بات ستا رہی ہے؟ دادا، ابا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو مجھے اپنی جان کہتے تھے اور مجھے کبھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ تو پھر وہ مجھے اتنی بڑی تکلیف میں کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا فیصلہ میرے لیے کتنا اذیت ناک ہوگا؟ میں کس تکلیف سے گزروں گی؟ کیا یہ تھی بابا کی محبت؟ رواحہ نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہی۔ رواحہ، آپ کے بابا آپ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن حالات کے آگے مجبور تھے۔ دادا نے اسے سمجھایا۔ حالات کے آگے مجبور؟ ہاں دادا، کیا اس سے زیادہ اچھا بہانہ نہیں تھا ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ رواحہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ دادا نے کچھ نہیں بولا۔ ان کو اپنی جان کا سودا کرنے کے لیے میں ہی ملی تھی، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، میری زندگی برباد کر کے چلے گئے۔ رواحہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ گئی۔ رواحہ کچھ دیر ان کے پاس رہی اور پھر نیند کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رواحہ پلنگ پر آ کے لیٹ گئی اور اپنی زندگی میں کچھ سال پہلے ہونے والے واقعات کو سوچنے اور پتہ نہیں سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سائیڈ ٹیبل پر رکھا ہوا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ اس نے نمبر اور نام دیکھا اور کال اٹھائی۔ یار، کہاں ہو تم؟ کب سے تجھے کال کر رہا ہوں۔ فون اٹھانے کے فوراً بعد دوسری طرف سے آواز آئی، سو رہا تھا یار، اب تو نے میری نیند بھی خراب کر دی، اب بول کیوں فون کیا؟ اس نے سخت بیزاری کے عالم میں کہا۔ اف، تو بھول گیا نا، آج ہم سب نے باہر جانا تھا۔ کہاں باہر؟
रवाहा ने हैरानी से पूछा, मुझे पता नहीं, तुम भूल जाएगा। चल खैर, तू तैयार हो जा, हम बस तेरे घर पर आधे घंटे में पहुंचते हैं, फिर मैं तुझे वापस से बताऊंगी। यह कहकर दूसरी तरफ से कॉल कट गई। वो उठा और टाइम देखा तो 11 बज रहे थे और वॉशरूम की तरफ चल दिया। आज इतवार का दिन था तो रवाहा देर तक सो रही थी। वैसे भी उसे मुश्किल इतवार के दिन ही सोने को मिलता था, लेकिन आज वो रवाहा को देर तक सोना नसीब ना हुआ, क्योंकि नीचे से चीज़ें टूटने और औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। या अल्लाह, एक तो इतवार के दिन भी सुकून से सोने को नहीं मिलता, और अल्लाह जाने अब क्या टूटा होगा, क्या नया कारनामा सरंजाम हुआ होगा। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे से निकली और नीचे गई। अब क्या तोड़ा नजमा खाला? उसने नजमा खाला से पूछा। नजमा खाला उनके घर में तब से काम कर रही हैं जब से रवाहा पैदा हुई है, घर की नौकरानी हैं। रवाहा बेटा, वो मेरे हाथ में चाय का कप था जो मैं साहिब को देने जा रही थी, और फिर अचानक से हमज़ा आया और उसने आपको बुरी तरह से डराया और आप डर भी गई। है ना? रवाहा ने उनके जुमले मुकम्मल करने से पहले ही अपनी मुंह ज़बानी में बता दिया, हाँ बेटिया, यही हुआ था। उफ नजमा खाला, आप वापस से इसके डराने से डर गईं। हमज़ा की तो आदत है, और अब तो आपको इस सब की आदत हो जानी चाहिए, और ये महीने में तीसरी दफ़ा हुआ है। उसने नीचे टूटे हुए कप को देखकर कहा, रवाहा बेटिया, अब मुझे क्या पता था कि हमज़ा बेटे मुझे डराएंगे, और वो तो हर वक्त नए नए तरीके से डराते हैं। मुझे तो लगता है अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं किसी दिन हार्ट अटैक से मर जाऊंगी। अच्छी बात है ना कि इतवार के दिन सुकून से सोने को मिलेगा। अब मैं हमज़ा की ज़रा खबर लूँ। और ऊपर जाते जाते बड़बड़ाने लगी। अभी उसके कमरे का दरवाज़ा खोला ही था कि उसके कान में एक ज़ोरदार सी आवाज़ आई, आपी आपी आपी। और रवाहा को लगा कि उसके कान के पर्दे फट गए। हमज़ा रवाहा ने अपने दोनों हाथों से कानों को बचाया और गुस्से से चिल्लाई, जी आपी। हमज़ा ने बड़ी ही मासूमियत से और अपनी नीली आंखों को अपना हथियार बनाकर जवाब दिया, हमज़ा, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हारी सारी गेम्स ले लेगी और कहीं बाहर भी नहीं लेकर जाऊंगी। और हाँ, जो आज कप तुम्हारी वजह से टूटा है ना, इसके पैसे अब तुम्हारी जेब खर्च से दूंगी, क्योंकि ये तीसरी दफ़ा हुआ है। नहीं आपी, वो तो मैंने एक छोटा सा मजाक किया था नजमा खाला के साथ। अब मैं बोर्ड हो रहा था तो मैंने मजाक कर लिया। आपको तो वैसे भी सोने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। रवा ने हमज़ा को गुस्से से घूरा, लेकिन कुछ ना कहा। अच्छा सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ आप माफ़ कर देना। हमज़ा ने पुलिस को लंबा किया और ज़ोरदार कहकर कहा, रोने वाली शक्ल बना ली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा सही है, रवाहा ने यह कहकर हमज़ा के माथे को चूमा। वो ज़्यादा देर उससे खफा नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसमें उसकी जान थी। बस अल्लाह आपी, आपको मेरा बड़ा हो गया हूँ। अल्लाह आपी, अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। इस तरह ना करा करें, पूरे 8 साल हो गया हूँ। पूरे 8 साल का हो गया हूँ। हमज़ा ने मुंह बसोरते हुए कहा। रवाहा इसके ये जुमले बेख्तियार हंस दिए। अच्छा ये बताओ, नाश्ता कर ले? नहीं, मुझे आपके हाथ का नाश्ता करना है। हमज़ा ने फ़ौरन से तर जवाब दिया, चलो ठीक है, मैं चेंज कर लूँ, फिर हम साथ नाश्ता करते हैं, और आज मैं आपका मन पसंदीदा नाश्ता बनाऊँगी। यस, हमज़ा ने खुशी से चुल कर कहा। हमज़ा वापस जा ही रहा था कि रवाहा ने आवाज़ देकर कहा, और हाँ, नजमा खाला से माफ़ी मांग लेना। आपी, हमज़ा ने मुंह बनाकर कहा, और उससे आगे कुछ बोलने से पहले ही आपी का चेहरा देखा जो उसे घूर कर देख रही थी, तो फ़ौरन से कहा, अच्छा, माफ़ी भी मांग लूँगा, अब ऐसे तो ना देखा करें। और ये कहकर फ़ौरन गायब हो गया। रवाहा बेख्तियार हंस दी। अगर दादा के बाद रवाहा को किसी से मोहब्बत थी तो वो हमज़ा उसका छोटा भाई था। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। रवाहा ने नाश्ता करने के बाद अपना मोबाइल देखा तो उस पर 6 मिस कॉल्स आई हुई थी, जिनमें से 5 तो आयशा भूकी की थीं और एक कोई अननोन की थी। वो मोबाइल देख रही थी कि वापस कॉल आई और स्क्रीन पे बड़ा सा आयशा
बहू की लिखा हुआ नजर आया। रवाहा कहाँ मर गई थी? मैंने सोचा अगर तुम वाकई मर गई हो तो कम से कम तुमने अपनी वसीयत में ये ज़रूर लिखा होना चाहिए कि मेरे स्वयं के खाने में बिरयानी हो और साथ में ज़र्दा भी होना चाहिए, वरना मैं तो हरगिज़ ना आऊँगा। दूसरी तरफ से आयशा शुरू ही थी और चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे याद किया सुबह सुबह? रवाहा ने उसकी बात बीच में ही काट कर अपना हाल हवाल बताया और पूछा, क्योंकि आयशा इतनी आसानी से चुप नहीं होने वाली थी और जब वो बोलना शुरू करे तो फिर अल्लाह ही माफ़ी कि वो चुप हो जाए। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा ये छोड़ो और मेरे साथ शराफत से शॉपिंग पे चलो, आयशा ने बड़े ही पुरजोश अंदाज में कहा। क्यों यार तुम्हें नहीं होगा शौक़ तैयार होने का, लेकिन मुझे है, और कल तो यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और मुझे अच्छे से अच्छे तैयार होना है। क्यों भाई, तुम पढ़ने जाओगी या अपना रिश्ता करवाने? रवाहा को अभी ज़रा तंग करना था उसको। नहीं यार, यूनिवर्सिटी में लड़के भी तो होंगे और क्या पता हमारी किस्मत अच्छी हो और कोई हैंडसम लड़का मिल जाए। अच्छा, कोई तुम जैसी चुड़ैल को लेफ्ट करवाएगा? रवाहा ने शरारत भरे मूड में कहा। तो आयशा के पूरे तन बदन में आग लग गई। तुम चल रही हो कि नहीं? आयशा ने गुस्से से पूछा। अच्छा बाबा, मजाक कर रही थी, तुम तो बस सीरियस ही हो जाती हो। रवाहा ने मुंह बनाकर कहा। चलो तुम आधे घंटे के अंदर अंदर आ जाओ, मैं तैयार हो जाऊंगी तब तक, रवाहा ने फ़ौरन कहा और फ़ोन रख दिया। इसके बाद वो कपड़े चेंज करने चली गई। कितनी और देर लगाओगी लड़की, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आधे घंटे का बोल कर 1 और घंटा लगा दिया। आयशा को न जाने कितनी देर हो गई थी आए हुए और वो कब से रवाहा को आवाज़ें दे रही थी, लेकिन मजाल है कि रवाहा जल्दी तैयार हो जाए। हाँ बस हो गई हूँ तैयार, लेकिन तुमसे तो 2 मिनट सब्र नहीं होता। रवाहा सीढ़ियों से उतरते हुए बोली। रवाहा ने नीली जीन्स के साथ सफ़ेद और काले रंग की शर्ट, जिसकी आस्तीनों पर सुर्ख रंग के फूल बने हुए थे, पहन रखी थी। सुनहरे बालों को खुला रखा हुआ था जो कंधों को छू रहे थे। आयशा ने उसे घूरा और उसकी डठाई से मुताफिर हुए बगैर ना रह सके। वाह वाह रवाहा बिन्ते जावेद, अगर कोई डीठ हो तो आपकी तरह हो, वरना ना ही तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप मोहतरमा की इजाज़त हो तो चलें? ठीक है चलो, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। आयशा ये कहती हुई बाहर निकल आई। दादा मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी, रवाहा ने दादा को जाते जाते बताया। वो रवाहा बेटा, एक बात कहनी थी, दादा ने उससे कहा। जी बोलिए, उसने सादगी से जवाब दिया। रवाहा, उनका पता चल गया है, उनके वकील से मेरा दोस्त खुद ही मिला है बेटा। मैंने पेपर्स बनवा लिए हैं और वो कल आ जाएंगे, तो तुम साइन कर देना और फिर मैं वो कल भिजवा दूंगा ताकि ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ये सब हो जाए और तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से जी लो मेरे बच्चे। जी दादा, रवाहा के हल्क में बस यही निकल रहा था। वो बाहर निकल आई। दादा बस इसे जाते देखते रह गए। वो